Assalamu alaikum students. I'm your principal course instructor for this subject, which is advanced painting, and your course code is FINE 4134, and I'm from University of Education, Bank Road Campus, Lahore. And first, we will discuss about the course outline of your subject. Your first topic is introduction, then there is looking back to the past, then there is monochromatic tonal painting, then there is importance of symbolic elements, practical assignments on composition, then there will be practical assignments on compositions again, then there will be preliminary sketches, then there's the painting on myself, and you will use the master copy in which you will use a mirror, not a photograph. Then there is introduction project on color harmony, and then there will be modern concepts. Then there will be social thoughts in which you will do the self-portrait using palette knife technique. After World War II, reclined and foreshortened figure pose. Then there will be color shape composition. Then there is topic on the portrait painting, and the last topic will be the self-portrait from mirror or trade painting. So today we are going to discuss the lecture number 17, which is the important elements of a composition. So first we have to organize. Composition, the word came from compose. Compose means to organize different elements. So which are these elements? The first one is proportion, then there is position, then there is path, and then there is perspective. So what do we mean by proportion? Proportion refers to the size, relationship of visual elements to each other and to the whole picture. When the principle of proportion is applied to a work of art, it is usually in the relationship of size. So जब भी हम proportion की बात करते हैं, mostly जो है हम size को describe कर रहे होते हैं, हम size की बात कर रहे होते हैं. और हमेशा प्रोपोर्शन के लिए आपको इट इज़ नेसेसरी दैट देयर शुड बी टू ऑब्जेक्ट्स. आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए या दो सब्जेक्ट्स होने चाहिए. मीन्स आपके पास दो फिगर्स हो सकते हैं. आपके पास एक फिगर जो है वो अडल्ट का हो सकता है, एक जो है वो चाइल्ड का हो सकता है. सो यू कैन ईज़िली मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द प्रपोर्शन. तो आप कह सकते हैं कि जो छोटा चाइल्ड है या बेबी है, इसका प्रपोर्शन जो है इससे कम है, या जो अडल्ट फिगर है इसका प्रपोर्शन इससे ज़्यादा है. सो हमेशा कोई ना कोई आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए टू डिस्क्राइब द प्रपोर्शन. फॉर एग्जांपल, द हाइट, विड्थ एंड डेप्थ ऑफ वन एलिमेंट दैट ऑफ अनदर. ऑब्वियसली जब हम अगर हम फिगर की बात कर रहे हैं तो उसमें हाइट आ जाएगी, उसमें विड्थ आ जाएगी और डेप्थ आ जाएगी. डेप्थ आ जाएगी अगर वो कोई शेप है या कोई ऑब्जेक्ट है. द साइज़ ऑफ वन एरिया टू द साइज़ ऑफ अनदर एरिया. ऑब्वियसली अगर आप टू रूम्स की बात कर रहे हैं या आप टू हाउसेस की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू आर मेकिंग अ कंपैरिजन between the two things and you are discussing the proportion. Again there comes the size of one element to the size of another element, and the amount of space between the two or more elements. So ये वही बात हो रही है कि साइज को ही हम डिस्कस कर रहे होते हैं between the two elements. Proportion in painting. So as you can see, यहाँ पे भी we can see the two different subjects. और यहाँ पे हमें एक वाइस वर्सा नज़र आ रहा है और एक आप कह सकते हैं कि रिवर्स हमें प्रोपोर्शन नज़र आ रहा है, कि जो हमें वो चिक है वो एक बड़े साइज़ में नज़र आ रहा है, इन अ लार्ज साइज़, और वो जो फिगर है वो हमें स्मॉलर साइज़ में नज़र आ रहा है. ठीक है, तो हम इसका एक कंपैरिजन कर सकते हैं. दो चीज़ें होंगी तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर यहाँ पे एक ही फिगर होगा तो हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि उसका साइज़ कैसा है. हमेशा दो चीज़ों को या किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो चीज़ों का कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है. जैसे हम कलर्स की बात कर लेते हैं. अगर कूल कलर्स हैं, वार्म कलर्स हैं, तो वार्म कलर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसके करेक्टरिस्टिक्स तो बताएंगे, बट
हमें कूल कलर्स भी बताने होंगे ताकि हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये करेक्टरिस्टिक्स वार्म कलर के हैं और ये करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये वार्म कलर्स के नहीं हैं। सो जो सेकंड हमारे पास एक एलिमेंट नज़र आता है हमें इन अ कॉम्पोजिशन, दैट इज़ position. Studies show that in front facing conditions, people prefer the subject to be located near the center, and that the most aesthetically pleasing paintings generally have their major area of interest located distinctly to the right of the physical center of the picture. In left or right facing conditions, preference was for the subject to face inward. सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं पोजीशन से रेलेवेंट कि जो स्टडीज़ पे या रिसर्च बेस्ड हैं कि अगर आप लेफ़्ट या राइट साइड पे आपका फेस है या प्रोफाइल है आपका, तो मोस्टली देखा गया है कि आपका जो फेस होता है वो आपका इनवर्ड की तरफ होता है इंस्टेड ऑफ आउटवर्ड। और और आपका जो है फ्रंट फेसिंग कंडीशंस जो हैं वो प्रेफर की जाती हैं स्पेशली नियर द सेंटर। अगर आप फ्रंटल व्यू है आपका तो आप ऑफ सेंटर नहीं होंगे, आप जो है सेंटर के करीब होंगे, बट एट द एग्जैक्ट सेंटर जो है आप नहीं होंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ पोजिशन इन पेंटिंग, हियर यू कैन सी जो मेन फोकल पॉइंट है, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, जो मेन सब्जेक्ट है, दिस इज़ द फीमेल फिगर। और एक तो उसके कलर्स और उसके ड्रेस के साथ भी उसको हाईलाइट किया गया है, और सबसे ज़्यादा जो लाइट है शार्प वो उसके ऊपर पड़ रही है। और जो बाकी एक वो क्राउड है वो तकरीबन जो है वो एक ही मोनोक्रोमेटिक है, एक ही टोनल हमें वेरिएशन नज़र आती है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हमें नज़र आता है इन कॉम्पोजिशन वो है पाथ। अनदर वे टू एक्सप्रेस पाथ इज़ आई मूवमेंट। जो पाथ है वो किसी भी पेंटिंग में आपकी जो आई है व्यूअर की उसको हेल्प करता है मूव करने के लिए। यू कैन से कि आपकी जो पेंटिंग है वो भी एक विजुअल स्पेस होती है और आपने उसमें इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी होती है, या इस चीज़ को आपने फोकस करना होता है कि आपका जो व्यूअर है वो एग्जैक्ट उस बात को फॉलो करता हुआ आपके मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो आपका फोकल पॉइंट है, जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है, उस तक उसकी आई पहुँचे, ना कि वो डाइवर्ट हो जाए। सो इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। इसके लिए आप डिफरेंट यू कैन टेक द हेल्प ऑफ डिफरेंट लाइंस। आप डायरेक्शंस जो है लाइंस की उनकी हेल्प ले सकते हैं। आप प्लेसमेंट इस तरह से कर सकते हैं डिफरेंट स्टिल लाइफ्स की कि आपकी एक वो जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो है वो आई फोकस हो उसकी, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, यू कैन यूज़ डिफरेंट एंगल्स और एजेस टेबल्स के। आप डिफरेंट जो है आप कलर्स के थ्रू जो है वो उसमें जो है आई जो है उसकी उसको डाइवर्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स योर मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। Both of these terms refer to the way our viewer's eye moves throughout a work of art. By manipulating the placement of objects, lines, values, shapes, color, etc., the artist controls the relative path a viewer's eye may travel. So, ये वही बात हो रही है। आप लाइंस को चेंज कर सकते हैं, यू कैन प्ले विद द मूवमेंट ऑफ लाइंस, यू कैन प्ले विद द डिफरेंट टोनल वैल्यूज़, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ डिफरेंट शेप्स, यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ डिफरेंट कलर्स। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी जो पेंटिंग है वो सिमेट्रिकल लग रही होती है बड़ी, तो आप उसके अंदर कुछ वेरिएशन लेके आ सकते हैं, कुछ उसकी मोनोटनस जो है मोनोटनी जो है उसको आप ब्रेक कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज ऑल एलिमेंट्स। Path in a painting, here is the example of a painting in which you can see a leading path with the help of diagonal lines. आपको एक पर्सपेक्टिव क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है इन दैट आर्च। आपको जो पर्सपेक्टिव में एक आर्च नज़र आ रही है उसके साथ क्या हो रहा है कि आपकी जो आपका जो आई है, आपकी जो व्यू है आपका वो ब्लॉक नहीं हो रहा है, आपको एक स्पेस मिल रही है। यू कैन फील अ सेंस ऑफ स्पेस इन दिस पेंटिंग। और अगर ये पर्सपेक्टिव ना हो, अगर ये आर्च ना हो, तो आपकी जो है वो आपका व्यू ब्लॉक हो जाता है और आपको स्पेस जो है वो फील नहीं होती है इन योर पेंटिंग।
Another important element in the composition is perspective. Linear perspective is a mathematical system for projecting the three-dimensional world onto a two-dimensional surface. In brief, this type of perspective begins with the horizon line, which defines the uh, farthest distance of the background and a central vanishing point. सो पर्सपेक्टिव का आपको पता है दैट क्या रोल ये प्ले करता है और हम किस तरह से इसको अचीव कर सकते हैं. हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव की जो है वो फॉर्म्स मिलती हैं, टाइप्स मिलती हैं, जिसमें हमारे पास एरियल व्यू आ जाता है, हमारे पास वॉर्म आई व्यू आ जाता है. ठीक है, एरियल व्यू को हम बर्ड आई व्यू भी बोलते हैं. और हमें लीनियर पर्सपेक्टिव मिल जाता है जो हम लाइंस के थ्रू पर्सपेक्टिव क्रिएट करते हैं. So, to this vanishing point, diagonal lines are drawn from the bottom of the picture plane, which defines the foreground of the space. The diagonals, vanishing point, and horizon line establish the space in which the artist may arrange figures, objects, or architecture so that they appear to exist in three dimensions. सो ऑब्वियसली जब आप पर्सपेक्टिव लाइंस अपनी ड्रॉ करते हैं, आप अपना फोरग्राउंड डिसाइड करते हैं. आपका फोरग्राउंड आ जाता है, आपका बैकग्राउंड आ जाता है, आपके पास होराइजन लाइन जो है वो आपके पास डिफाइन हो जाती है. होराइजन लाइन इज़ बेसिकली द लाइन जहाँ पे आपको स्काई और जो ग्राउंड है वो मीट करते हैं. ठीक है, बट इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन ऑफ आवर आइज़. ऐसा होता नहीं है, बट दिस इज़ जस्ट एन इल्यूजन. एक इल्यूजन होता है हमारी आँखों का. Perspective in painting. In this painting, you can see that how artist has achieved this perspective with the help of arches. आपको आर्चेस में भी वेरिएशन नज़र आ रहा है उनके साइजेस के अंदर, और जो हमें एक सारी लाइंस जो हैं वो एक ही पॉइंट की तरफ जो है वो मूव करती हुई हमें नज़र आ रही हैं. और अगर एक होराइजन लाइन देखा जाए तो उसके ऊपर एग्जैक्ट हमारा जो है वो फोकल जो है पॉइंट वो है, जो हमारे मेन फिगर्स हैं उनको एग्जैक्ट सेंट्रलाइज किया गया है आर्चेस के बीच में. सो दैट्स हाउ यू कैन achieve perspective in your painting. Viewpoint, viewer's position and fill the frame. Viewpoint, viewer's position. The position of the viewer can strongly influence the aesthetics and the psychological effect of an image. Therefore, the artist's choice of the viewer's position affects how the viewer responds to the painting. So, आप जब कोई पेंटिंग डेवलप करते हैं तो आप डिसाइड करते हैं दैट हाउ समवन इज़ गोइंग टू लुक एट योर आर्ट वर्क और एट योर पेंटिंग. सो आजकल तो आप कंटेम्प्रेरी आर्ट वर्क की बात करें या मॉडर्न आर्ट की बात करें तो उसमें आप प्लेसमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली इन द इंस्टॉलेशंस और इन द इंस्टॉलेशन ऑफ एनी स्कल्पचरल वर्क और एनी 3D आर्ट वर्क. तो उसके अंदर आप चाहें तो अपनी पेंटिंग्स को रूफ पे भी प्लेस कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो प्लेस दैम ऑन द फ्लोर. इट्स अप टू यू दैट हाउ यू वांट योर व्यूअर टू व्यू योर आर्ट वर्क. बट उसके पीछे कॉन्सेप्ट होना चाहिए दैट वाई यू आर पुटिंग योर कैनवस ऑन द फ्लोर एंड वाई यू आर पुटिंग इट ऑन द रूफ. सो इसके लिए एक आपके पास पीछे रीज़न होनी चाहिए. सो डिफरेंट आर्टिस्ट हैं जो डिफरेंट तरह से प्ले करते हैं विद द पोजिशनिंग ऑफ देयर आर्ट वर्क्स. In these images, you can also see that how artist has balanced the composition. Viewpoint, fill the frame. A subject can be rendered more dramatic when it fills the picture frame. This technique is also called cropping. There exists a tendency for the human eye to perceive objects as larger than they actually are, and filling the picture frame fulfills this psychological mechanism. सो बेसिकली आप जब क्रॉप करते हैं इमेज को तो आप उसको जूम इन कर लेते हैं. जैसे ही आप उसको क्रॉप करते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया को तो आप उसकी डिटेल्स को इन्हांस कर देते हैं, उसकी जो इंट्रिकेट डिटेल्स हैं, और उसको आप जूम इन कर देते हैं. सो अब तो काफ़ी एडवांसमेंट है. नाउ यू हैव कैमराज एंड नाउ यू हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स टू डू सच काइंड ऑफ क्रॉपिंग. बट
अगर हम हिस्ट्री में देखें या कन्वेंशनल पेंटिंग्स में देखें, व्हेन सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड सॉफ्टवेयर्स वर नॉट अवेलेबल, तो ये जो हैं चीज़ें बहुत मैटर करती थी। ये इवन नाउ डेज़ आपको इसकी सेंस होनी चाहिए, आपको इसका आइडिया होना चाहिए, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चाहे आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे आपके पास कैमरास हैं, टेक्नोलॉजी है। बट जब तक आपके पास माइंड में उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तो आप कैमरा को भी नहीं यूज़ कर पाएंगे, आप टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर को भी नहीं यूज़ कर पाएंगे। रूल ऑफ थर्ड्स. Rule of thirds is a guideline commonly followed by visual artists. The objective is to stop the subjects and areas of interest, such as the horizon, from cutting the image in half by placing them near one of the lines that divide the image into three equal columns and rows, ideally near the intersection of those lines. रूल ऑफ थर्ड्स को हम शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक लेक्चर में। उसमें ये है दैट यू विल डिवाइड योर इमेज with the help of two vertical lines and two horizontal lines, so you will get a kind of grid। और वो जो जहाँ पे intersect करती हैं vertical and horizontal lines, you will get such 4 points। आपको इस तरह के 4 points मिलते हैं जहाँ पे lines intersect करेंगी, और वो आपके जो points बनते हैं, वहाँ पे आप कोशिश करते हैं कि आपका जो मेन इमेज है, इफ़ यू आर यूजिंग 2 फिगर्स और 3 फिगर्स, तो आप उनको वहाँ पे प्लेस करते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर एग्जैक्टली या उनके पास। अगर आप ऐसा करते हैं सो यू कैन अचीव अ बेटर कॉम्पोजिशन, और एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है आपकी पेंटिंग में। रूल ऑफ स्पेस. The rule of space applies to artwork where the artist wants to create the illusion of movement. This can be achieved by leaving open space in the direction the eyes are looking in a portrait painting, or when picturing someone moving by adding open space in front of the subject rather than behind to indicate movement in that direction. So, space plays a very important role in any kind of artwork, either it is installation, either it is sculptural work. तो स्पेस बहुत मैटर करती है। और आप क्या कर सकते हैं, इफ़ यू आर पेंटिंग सम काइंड ऑफ पोर्ट्रेट, अगर आप कोई पोर्ट्रेट पेंट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि व्यूअर जो है वो डायरेक्टली फेस पे ही, फीचर्स पे ही फोकस कर रहा है, पोर्ट्रेट फेस पे मतलब फोकस कर रहा है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव बिहाइंड दैट पोर्ट्रेट, जिससे आपकी जो एक स्पेस है वो ब्लॉक ना हो। और अगर आपने पेंटिंग में कोई फिगर दिखाया है विच इज़ इन मूवमेंट, और ही और शी इज़ मूविंग अहेड टूवर्ड्स सम प्लेस, तो आप उसके लिए थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे एट दैट डायरेक्शन, ताकि पता चले कि वो आगे से व्यू ब्लॉक नहीं हो रहा है। वो फिगर अगर कहीं जा रहा है तो वहाँ पे पर्सपेक्टिव है और वहाँ पे मार्जिन है, ताकि वहाँ पे स्पेस ब्लॉक नज़र ना आए। अगर आप किसी फिगर को बिल्कुल एक वॉल के अगेंस्ट खड़ा कर देंगे, तो ऐसे वो अजीब लगेगा। ऐसा लगेगा कि वो जो है फिगर आपका वो जाके वॉल में लगेगा। ठीक है, तो उससे वो स्पेस नहीं आएगी, वो सेंस भी डेवलप नहीं होती है, वो आर्टिफिशियल लुक एक देगा। रूल ऑफ ऑड्स. द रूल ऑफ ऑड्स स्टेट्स दैट by framing the object of interest in an artwork with an even number of surrounding objects, it becomes more comforting to the eye. The rule of odds suggests that an odd number of subjects in an image is more interesting than an even number. Thus, if you have more than one subject in your picture, the suggestion is to choose an arrangement with at least 3 subjects. So, I hope that you have fully understand about the different elements of composition today, and that's it. Thank you.